let's see what does section 1 of the IPC says. So we are starting from the preamble. Preamble is, whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows. Section 1 is title and extent of operation of the code. The act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. So what does this section 1 says? It is giving that where all the IPC will be applicable. So as we all know that obviously it will be applicable in India, but before 31st October 2019, this act was applicable all over the India except the state of Jammu and Kashmir. लेकिन as we all know 31st October 2019 को Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019 was filed, was made, and this act replaced the Jammu and Kashmir's रणबीर penal code. तो हम सबको पता ही है कि JNK की लॉ 2019 से पहले अलग थी, अक्टूबर 2019 से पहले, एंड जब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है तो वहाँ पे जो रणबीर पीनल कोड था इन द प्लेस ऑफ IPC, इट वाज रिप्लेस्ड by the virtue of the new Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019, and now even there also Indian Penal Code applies in place of रणबीर penal code. तो इसीलिए अब the act shall be called the IPC and it is extendable to the whole of India, even JNK. अब जो इसमें ये है हमारे ऊपर preamble में जो word India दिया हुआ है, to the whole of India, and even in the preamble to provide a general penal code for India. तो इंडिया कहाँ तक है, वेयर इज़ इट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, उसमें आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 it gives what is the territory of India, what does the territory of India comprise of. So first is the territories of the states, यानी कि states की सारी territory, उत्तर प्रदेश, केरला, जितने भी हमारे states हैं, the 29 states, and the union territories mentioned in the first schedule of the constitution, and such other territories as may be acquired. तो हमारी states की territory होंगी जितने भी states हैं, जितनी भी union territories हैं, and if later if India acquires some any other territory, even then, and this is to be noted that जो territories हैं, these territories also is not only the land but it also include the territorial waters of India. तो जो हमारा पानी है जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, वो भी हमारा टेरिटरी है, इंडिया का पार्ट है. This is section 1. Now we move on to section 2. Section 2 is punishment of offences committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. So before moving ahead, हमें सबसे पहले इसमें ये देखना है कि जो एक्चुअली जो सेक्शन 2, 3 and 4 जो है IPC के, दे आर रिगार्डिंग दी jurisdiction. There are two kinds of jurisdiction. One is territorial and one is personal. So section 2, 3 and 4 are talking about territorial jurisdiction, जिसमें से section 2 talks about intra-territorial jurisdiction. Intra-territorial jurisdiction means within India, and section 3 and 4 talks about extraterritorial jurisdiction, that is jurisdiction within outside the India. सो ये कौन से jurisdiction की बात हो रही है? दिस इज द jurisdiction जहाँ पे IPC लागू होगी, जहाँ पे IPC का jurisdiction बनेगा. ठीक है, तो यानी कि इससे वी अंडरस्टैंड कि इंडियन पीनल कोड इज एप्लीकेबल ऑब्वियसली इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल outside the territory of India, but there are certain cases and exceptions to it which are given under section 3 and 4, जो कि हम section 2 से डील करने के बाद आएंगे. तो अब यहाँ पे देखिए, we have to break this section. Punishment of offences committed within India. Every person, तो जो पहला वर्ड है every person, तो यहाँ पे वो ऑफेंसेस जो कि इंडिया के अंदर हो रहे हैं, बट उन ऑफेंसेस को कौन कर रहा है? एवरी पर्सन. ये नहीं है कि वो एक्ट्स सिर्फ एक इंडियन का सिटीज़न ही कर रहा है. तो एनी पर्सन इंक्लूड्स
each and every person who is including citizen of India एज वेल एज अ नॉन सिटीजन. सो देयरफॉर अगर कोई फॉरनर है और वो इंडिया की ज़मीन पर है और वो अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि एक्ट करता है या फिर ओमिशन करता है, यानी कि कोई ऐसा काम करता है जो कि आईपीसी के अंदर फॉल करेगा, या फिर कोई ऐसा कोई एरर करता है या लैप्स करता है जिसको हम ओमिशन बोल रहे हैं, जो कि आईपीसी के कॉन्ट्रेरी होगा, विच इज़ नॉट फॉलिंग इनसाइड दी which is contrary to IPC, will fall under this section, and that person will be liable and is committed within India. So now this person, he can be of any nationality, any rank, any caste, any creed, and he can be triable by Indian courts, provided that the offences with which he is charged has been committed on any part of the Indian territory. बस यही है कि कोई भी करे, इंडिया के अंदर कर रहा है, वो ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, सिंपल. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि इस चीज़ से बाहर रखा गया है कि उनके ऊपर ये नहीं लगेगा, जैसे कि हो गए फॉरेन सॉवरेन्स. तो जो फॉरेन सॉवरेन होता है ना, सॉवरेन का देखिए कॉन्सेप्ट ये है जैसे कि एक कंट्री का सॉवरेन किसी दूसरे कंट्री के लॉ से एमिनेबल नहीं होगा, क्योंकि ही इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, ही इज़ द सॉवरेन, मतलब उसके नाम में ही सॉवरेन है. तो एज पर दी प्रिंसिपल ऑफ sovereignty, the sovereignty admits no superior. Therefore, it would be incompatible with the concept of sovereignty to submit to the jurisdiction of some other sovereign. इसीलिए वो इसके बाहर रहेगा आईपीसी. इसी तरीके से दूसरे टाइप के लोग हैं, वो हैं दी हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट, like the President of India and the governments of the state. So both President and the government of the state are exempt from the jurisdiction of this court, or also they are covered under Article 361. Please आप लोग ये नोट करें, Article 361 of the Constitution, which provides that no criminal proceedings shall be instituted or continued against the President or a Rajyapal of a state in any court during the term of his office. एंड थर्ड इज़ एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, वो लोग भी इस कोर्ट से गवर्न नहीं होंगे. फोर्थ इज़ एलियन एनिमीज़. तो एलियन एनिमीज़ दे कैन नॉट बी ट्राइड बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया इन रेस्पेक्ट टू देयर एक्ट्स ऑफ वॉर. क्यों? क्योंकि जो इस टाइप के जो एक्ट्स ऑफ वॉर होंगे दैट विल बी कवर्ड अंडर मार्शल लॉ एंड नॉट द इंडियन पीनल कोड. लेकिन अगर कोई एनियल एलिमिनी रॉबी करता है, थेफ्ट करता है, चीटिंग करता है, देन ही विल बी कवर्ड अंडर द आईपीसी. नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन 3. सेक्शन 3 स्टेट्स punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. तो see, punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. So committed beyond, it means committed beyond India. Like section 2 was about offences committed within India by anyone. So section 3 talks about punishment of offences committed beyond. Those offences which are taking place outside India but they are falling under the purview of Indian Penal Code. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. So this section is only saying कि एक ऐसा एक्ट जो कि अगर इंडिया में होता तो वो आईपीसी के अंदर कवर होता, तो ऐसा ही सेम एक्ट अगर वो इंडिया के बाहर हुआ है तो भी वो बिल्कुल आप उसको ऐसे ही डील करेंगे एज कि वो इंडिया में ही हुआ है, वो उसी तरीके से ट्राइएबल होगा. और ये सेक्शन वी शुड रीड विद द एक्स्ट्राडिशन एक्ट विद सेक्शन 3. मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लेना सेक्शन 3 ऑफ द एक्स्ट्राडिशन एक्ट एंड सेक्शन 187 एंड 188 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो सेक्शन 187 एंड 188 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बस एक्चुअली वो प्रोसीजर दिया हुआ है कि जब अगर कोई एक्ट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उस बंदे को समन्स कैसे जाएंगे और उसको इंडिया कैसे लाया जाएगा, तो उसमें प्रोसीजर है बस. और एक्स्ट्राडिशन एक्ट जो है ये मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि मान लीजिए कोई
ऐसा गलत काम करके, कोई क्राइम करके इंडिया से बाहर भाग गया है, तो ये इंटरनेशनल लॉ होती है कि अगर हमारा उस कंट्री के साथ एक्स्ट्रैडिशन ट्रीटी है तो आप उसको एज़ पर दी लॉज गिवन अंडर द एक्स्ट्रैडिशन एक्ट एंड द इंटरनेशनल लॉ आप उस इंसान को कैसे वापस इंडिया लाओगे. सो दिस इज़ ऑल प्रोसीजरल. सो इट विल बी कवर्ड अंडर द एक्स्ट्रैडिशन एक्ट. बट वॉट सेक्शन 3 इज सेइंग इज सिंपली अगर कोई एक्ट ऐसा बाहर हुआ है आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन. सो एनी पर्सन हियर अगेन मीन्स कोई भी, वो इंडिया का सिटीज़न भी हो सकता है, इंडिया का सिटीज़न नहीं भी हो सकता है. तो इंडिया का सिटीज़न कैसे हो सकता है? मान लीजिए एक ए है, वो एक फॉरेन सिटीज़न है, उसके पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट है बी के नाम से. तो बी को उसको पैसे देना है, मान लीजिए 10,000 का है, और वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसी सी ने दिया है बी को. अब ए चला गया अपनी कंट्री में विद द लेटर ऑफ क्रेडिट, क्योंकि वो बैंक में डालेगा, उसको कैश कराएगा. उसमें वो एक साइफर ऐड कर देता है, एक और ज़ीरो ऐड कर देता है टू डिफ्रॉड बी. तो अब ये जो फॉर्जरी है, दिस इज़ फॉर्जरी. अब वो इंडिया में भी ट्राई हो सकता है बशर्ते कि वो इंडिया में मिल जाए. फिर वो जिसने फॉर्जरी करी है वो इंडिया में कैसे आएगा? इट विल बी डेल्ट अंडर दी CRPC सेक्शन 187 and 188. In a similar way, let's assume that there is a Pakistani citizen and he writes letters and through telegrams वो एक इंडियन सिटीजन के साथ एक डील करता है that he will send rice to him in India. और इसके लिए जो बी है वो उसको राइस के पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, बट ए कभी राइस भेजता ही नहीं है. तो एज सून एज अगर तो बी उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है इंडिया में, और अगर एंड एज सून एज ही गेट्स द इन्फॉर्मेशन की जो ए है वो इंडिया में आ रहा है, तो ही थ्रू दैट कंप्लेन ही कैन गेट हिम अरेस्टेड. और उसके ऊपर एज पर दी सेक्शन 3 ऑन दिस पाकिस्तानी नेशनल ही विल बी डेल्ट एज इफ द ऑफेंस वॉज डन इन इंडिया एंड ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड as under the IPC. Now moving on to section 4. So section 4 is very interesting because it deals with a term which is admiralty jurisdiction. तो obviously it also deals with the extraterritorial jurisdiction section 3 and 4. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर दोनों ही extraterritorial jurisdiction की बात कर रहे हैं? तो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये है, सेक्शन 3 में जो आप देखेंगे वर्ड यूज़ है जो सेक्शन 3 स्टार्ट होता है, इट सेज एनी पर्सन लायबल. सो एनी पर्सन वेदर इंडियन और अ फॉरेनर, कोई भी अगर बाहर किया है, तो यानी कि अगर इंडियन ने भी बाहर किया है और किसी फॉरेन नेशनल ने क्राइम इंडिया के बाहर किया है तो IPC इस पर अप्लाई होगा. सो सेक्शन 4 इस डिफरेंस की ऑफेंस तो बाहर ही किया है, लेकिन सिर्फ ऑफेंस तो बाहर ही किया है, बट any citizen of India, the term used here is any citizen of India, so it is not applying on the foreign national, it is only for an Indian citizen. Now let's see what section 4 is.